आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड पॉइंट थ्री। अब इससे पहले के जो हमने इंट्रोडक्शन और इनके दो टॉपिकों के विषय में बात किया था वो हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, मीन्स मंदी के साल। The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929, fearing a fall in prices. People made frantic efforts to sell their shares on one single day. 24 October, 13 million shares were sold. This was the start of great economic depressions over the next 3 years. Between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculator withdrew their money from the market. The effects of this recession in the US economy were felt worldwide. German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages. The number of unemployed touched an unprecedented 6 million on the streets of Germany. You could see men with plague, placards around their necks saying willing to do any work. Unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperately quipped up at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. The economic crisis created deep and anxiety and fear in people. The middle class, especially salaried employee and pensions, show their saving diminish when the currency lost its value. Small businessmen, the self-employed, and retailers suffered as their business got run. This section of society were filled with the fear of proletarianizations and state of being reduced to the rank of the working class or worse still, the unemployed unorganized workers could manage to keep their head above water, but unemployment weakened their bargaining power. Big house was increases. The large mass of peasantry was affected by sharp fall in agriculture prices, and women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair. Politically, too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar constructions had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a rule by coalitions. Another defect was Article 48, which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights, and rule by decree. Within its short life, the Weimar Republic showed 20 different cabinets lasting on
an average to 39 days, with a liberal use of Article 48. Yet, the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solution. सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगार की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी के सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे छोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लोग और खुदरा व्यापारियों का भय सताया रहता था। उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो वह भी एक दिन मजदूर बन कर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मूल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों का भी दिल डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिर था और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों काल में वाइमर गणराज्य शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा।
और उनकी औसत अवधि 239 दिन में ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी।